Hello students, in this video we will discuss few questions on electrostatics. So आप लोगों ने जो doubts भेजा है वो doubts हम लोग discuss करेंगे. So the first question that we are going to do is page 192, solved example 33. अच्छा, now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक uniformly charged disk दी हुई है. Okay, so this is a disk that is given to you. This disk has a positive charge. Surface charge density is given to you as sigma. The radius of the disk is given to you as a. Okay. Now इस disk पे ये इस तरह से positive charge है. Okay. Now इस disk के axis पे at a particular height, at a height h, there is a small particle, okay, जिसका mass is m. And इस पे जो चार्ज है that is given to you as q. Okay, and you are dropping this. We are dropping this. Okay, so a particle of mass m and positive charge q is dropped along the axis of a disk from a height h with zero initial velocity. So we have zero initial velocity. Okay. So अब आपको क्या पूछा गया है? The particle has, अच्छा, they have said that the charge to mass ratio for this particle is given to you as 4 epsilon naught g upon a. This is given to you. You have to find out the height h such that this particle just reaches the center over here. Okay. Now इस डिस्क में हम लोगों ने लेक्चर वीडियो 15, we have done this in video 15. Okay, lecture 15 on electrostatics. हम लोगों ने पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क कैलकुलेट किया है. पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. Q वॉज इक्वल टू potential was equal to, potential on the axis of the disk was equal to Q divided by 2 pi epsilon naught r square plus x square, okay, minus x, where x was this distance. X was basically the distance from the center. Okay, now क्या होगा वो हम लोग देखते हैं. Now if this charge has a positive charge, okay, ये डिस्क पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगाएंगे. अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये धीरे 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 नीचे आएगा. सो दिस मास इज मूविंग अगेंस्ट द फोर्स. नाउ सिंस दिस मास इज मूविंग अगेंस्ट द फोर्स, व्हाट विल हैपन, यहां पे इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी ना. Because this mass is moving down, it is moving against the force. The electrostatic energy, electrostatic potential energy of this mass will increase. So I write electrostatic potential energy, static potential energy will increase. Okay. And साथ में और क्या होगा, बिकॉज ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के वजह से इस पे फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. ओके, नाउ हमें ये देखना है कि मतलब व्हाट वी हैव टू डू इज, आप क्वेश्चन सेज कि आपको ये इंश्योर करना है कि इट जस्ट रीचेस ओवर हियर, ये यहां तक जस्ट पहुंच जाए. तो व्हाट शुड बी दैट हाइट h. अच्छा, अब यहां पे ये सम करते वक्त अ सिंपल वे वुड बी कि हमें ये पता है कि ये जो पार्टिकल है वो यहां से जब यहां पे आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. एंड इन्होंने आपको ये पूछा हुआ है कि इट शुड जस्ट रीच ओवर हियर. ओके, Now since we want this to just reach over here, तो यहां पे भी फाइनल वेलोसिटी आप जीरो मानोगे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ चेंज हो नहीं रही है. सो आई कैन से डिक्रीज in
gravitational potential energy should be equal to increase in electrostatic potential energy. Correct? Now decrease in gravitational potential energy, आपकी gravitational potential energy किस amount से decrease हो रही है? It is mgh. अच्छा, increase in electrostatic potential energy. Now this is, if I call this point as point A and this as point B, so increase in electrostatic potential energy, this will be given by charge into potential difference. Your final potential is VA minus initial potential is VB. Okay, now let's solve this. VA find out करने के लिए आपको ये H, सी ये जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, ये किसके लिए अप्लाई होता है? मान लो इफ दिस इज योर डिस्क एंड दिस इज योर डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस एंड r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट ए तो यहां पे है ना, सेंटर पे. तो पॉइंट ए पे अगर जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी. सो पहले पोटेंशियल्स फाइंड आउट कर देते हैं. सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए is basically you have to put x equal to 0. If you put x equal to 0, you will get this as q upon 2 pi epsilon naught r. Okay. Similarly, potential at B, आप x की वैल्यू जो है पोटेंशियल एट B, आप x की वैल्यू h पुट करोगे. सो दिस विल बिकम इक्वल टू, x की वैल्यू आप h पुट करोगे. So when you put x as h, potential at point B would be equal to q upon 2 pi epsilon naught r square into r square plus h square minus h. This is what you would get. Okay. Fine. Now once you know this, अब ये वैल्यूज यहां पे सब्सटीट्यूट करें. सो व्हाट आई गेट इज mgh इज इक्वल टू q इंटू VA माइनस VB. सो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h. This is what you would get. Okay. अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है. कैसे करेंगे? फाइन, लेट मी राइट दिस एज GH. दिस इज Q बाय M. ये M यहां पे नीचे आ जाएगा एंड Q बाय M की जो वैल्यू है वो आपको यहां पे दी गई है. इट इज गिवन टू यू, दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट G बाय A. सो लेट मी पुट दैट ओवर हियर. I can write Q by M as 4 epsilon naught G by A. अच्छा, into Q upon 2 pi epsilon naught R, ये कॉमन आ सकता है. So this will become 1 minus R square plus H square minus H. This is what you would get. Okay. Now क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी? सो A के जगह पे वी हैव R और R के जगह पे आई हैव टू सब्सटीट्यूट A. ओके, ये जो R है दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द डिस्क एंड हमारे केस में रेडियस ऑफ द डिस्क इज गिवन टू यू एज A. सो ये हमें यहां पे सब्सटीट्यूट करना होगा. सो क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी वो देखते हैं. एप्सिलॉन नॉट कट हो जाएगा. अच्छा, देन यू विल हैव G and G will get cancelled. Okay, this will be 1, 2. So now I'll get this as H is equal to 2Q pi. R के जगह पे A पुट करना है तो A into A is pi A square 1 minus R A square plus H square, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस h. ओके,
Now q upon pi a square, what will this be equal to? Q is total charge on the disk. Pi a square is the area of the disk. So q upon pi a square will be nothing but surface charge density. ना ये जो sigma है, this is equal to q upon pi a square, correct? So q upon pi a square can be written as 2 into sigma. This becomes 1 minus square root of a square plus h square plus h. ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है कि सॉरी आई मेड अ मिस्टेक व्हाइल कॉपिंग अ क्वेश्चन. ये q बाय एम एस 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय सिग्मा दिया हुआ है ये. ओके, इट इज नॉट a, दिस इज सिग्मा. सो यहां पे ये a नहीं होगा, यहां पे यू वुड हैव सिग्मा, ये सिग्मा होगा. अच्छा, मोरेवर अब दे हैव, हम लोगों ने, मैंने यहां पे भी लिखने में एरर की है. ये दिस इज फाइन, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो यहां पे ये आर स्क्वायर टर्म आएगी ना. ओके, हाँ, बिकॉज यहां पे ये आर स्क्वायर टर्म आएगी. अगर जो मैं इसको बाहर निकालता हूं तो आई हैव दिस आर, तो मैं यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो आई गेट आर ओवर हियर. ओके, so this will be r, so r के जगह पे I have to now put a over here. Fine, and नीचे ये सिग्मा होगा. so यहाँ पे I have this sigma, so I have this sigma, ये सिग्मा और सिग्मा कट हो जाएगा. so now what I'll have is, sorry for this error, वो so this becomes equal to 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच. ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है. अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? सो एक काम करता है, सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू एच बाय 2. ओके, दिस इज इक्वल टू ए प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. हाँ, ये टर्म को ये साइड पे देखे जाता है, ये टर्म को यहां पे देखे आता है. तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए प्लस एच माइनस एच बाय 2. सो दिस विल बिकम इक्वल टू एच बाय 2. अब आप स्क्वायर करो दोनों साइड्स को, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 4 प्लस ए एच. अब आपको ये क्वाड्रेटिक मिल गया. यू हैव टू सॉल्व फॉर एच. तो आपको ये क्वाड्रेटिक जो मिलेगा वो ये मिलेगा 3h स्क्वायर बाय 4 माइनस ए एच. अच्छा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर डायरेक्टली कट हो जाएगा. सो दिस इज एनीवे इक्वल टू 0. तो एक एच और एच वैसे ही कट हो जाएगा अब यहां पे. So what you will now get is h is equal to 4a by 3. This is what you would get. I'll just write it over here. आपको ये जो h है, you will get this as 4a by 3. ठीक है? So I hope this is clear to you. Okay. मैंने बस ये छोटी सी एरर की थी, इसलिए यहाँ पे वो कैंसल आउट नहीं हो रहा था. बट देन आई चेक द क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन्होंने सिग्मा दिया हुआ है. सो दिस इज सिग्मा. तभी ये डायमेंशनली, मतलब इफ आई वुड हैव टेकन दिस एज ए तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी नहीं होता. ओके, सो ये सिग्मा, इफ आई टेक दिस एज सिग्मा तो यहाँ पे फिर चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी. कि आप खुद से वर्कआउट करोगे तो इट्स सिंपल, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, फाइन. Now there is one more part to it. आपको equilibrium position find out करनी है. What would be the equilibrium position in this case? Okay, so let's do that. Okay, so अब आपको equilibrium position find out करनी है. तो equilibrium position find out करने के लिए यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे आपको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, नाउ इस पे एक फोर्स जो लग रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज mg. एंड दूसरा जो फोर्स लगेगा इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, इस पे जो ये फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी क्यू इनटू ई. ओके, फाइन. ओके, नाउ
फॉर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा, इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल. सो आई कैन राइट फॉर इक्विलिब्रियम, ये जो mg है, दिस mg इज इक्वल टू q इंटू ई. करेक्ट. अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, लेट्स से इफ दिस डिस्टेंस इज x and this radius is r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. तो ये वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे. सो यू हैव mg इज इक्वल टू q into E. E is basically sigma upon 2 epsilon naught 1 minus x. x के जगह पे हम लोग h कंसिडर करेंगे, h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो x के जगह पे वी आर कंसिडरिंग h एंड रेडियस ऑफ द डिस्क इज गिवन टू यू एज a. सो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ओके, नाउ let's solve this. So I can write this as g is equal to q by m आ जाएगा ना, and q by m को हमें क्वेश्चन में दिया हुआ it is 4 epsilon naught g by sigma. So q by m will be equal to 4 epsilon naught g by sigma into sigma by 2 epsilon naught 1 minus h upon square root of h square plus a square. ओके, अब क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी वो देखते हैं. सो g एंड g विल गेट कैंसल्ड, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट विल गेट कैंसल्ड, सिग्मा एंड सिग्मा विल गेट कैंसल्ड. ओके, 4 1 जा, ये 2 1 जा, 2 2 जा. ओके, अब ये 2 को यहां पे लेके जाते हैं. सो आई गेट 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. So h upon square root of h square plus a square 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. And now you have to square and solve this. आप इसको square करके solve करोगे तो you will get h. Okay. So on solving, what would you get? So this will become equal to 4h square is equal to h square plus a square. So h will now become equal to a by root 3. So this is basically the equilibrium height. This is equilibrium height. Okay. Now when I say this is the equilibrium height, so it means कि इस height पे ये जो particle है, that particle will remain stationary. Okay. Now there are two possibilities. This equilibrium can either be stable equilibrium or this equilibrium can be an unstable equilibrium. तो अब आपको ये देखना है कि ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, व्हाट टाइप ऑफ एन इक्विलिब्रियम इज दिस. ओके, नाउ ओके, लेट मी रीराइट दिस. इसको ना मैं रीराइट करता हूं. सो आई कैन राइट दिस एज mg इज इक्वल टू q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये h स्क्वायर. सो 1 plus a square by h square. This is what we will get. Okay. So ये वाला जो सेक्शन है, this part, okay, this part is nothing but basically the electric field on the axis of the disk. This is electric field on the axis of the disk. On the axis of the disk, okay. Now let's try to see कि what happens above this point and what happens below this point. Okay. Now हमें ये पता है कि ये जो चार्ज है जो ये नीचे it is falling, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है एंड ये q इंटू ई जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. Now this mg is always constant.
Okay. Now initially, let's call this as my initial point. Okay. Initially ये मान लो ये this is the disk. Okay. And this is somewhere my equilibrium point. ये जो equilibrium point आ रहा है a by root 3. So this is my equilibrium point. Okay. Now initially ये equilibrium point, sorry, ये जो distance है, this distance is h by root 3. Now initially if you see, initially the height of this particle is more than h by root 3. Correct? Now अब हम लोग वो देखते हैं कि what will happen if the height is more. Now अगर जो आपकी height increase होती है, if your height increases, okay, तो ये term decrease हो जाएगा. ये टर्म डिक्रीज हो जाएगा तो मेरा डिनोमिनेटर जो है दैट विल डिक्रीज. नाउ इफ द डिनोमिनेटर डिक्रीजेस माय ओवरऑल टर्म इंक्रीजेस. नाउ इफ दिस इंक्रीजेस तो 1 माइनस दिस टर्म, क्योंकि आपका ये टर्म इंक्रीज हो रहा है तो ये जो टर्म है ये आपका टर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज. सो आई कैन से दैट एज वी गो अवे, जैसे जैसे हम लोग दूर 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 जाना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ओके. सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आई नो इफ इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें पता है mg इज इक्वल टू QE. बट आप जैसे ही यहां से दूर जाओगे तो क्या होगा, यहां से आप जैसे ही दूर जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो आई कैन से अबव दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल रेड्यूस. तो आपका Q इंटू ई टर्म जो है इट विल बी लेस देन M इंटू जी. नाउ इफ Q इंटू ई इज लेस देन M इंटू जी, तो अबव दिस पॉइंट द नेट फोर्स mg is more, so net force will be in downward direction. So I can write therefore above equilibrium point net force is downwards, that is towards equilibrium. Okay. Now what will happen below equilibrium point? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वापस यहां पे लिखता हूं. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर बाय h स्क्वायर. ओके. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट योर हाइट इज लेस. So if your height is less, this number is more. If this number is more, your denominator is more. Denominator is more, your overall ratio is less. Your overall ratio is less. So ये 1 माइनस आप ये नंबर कर रहे हो ना, तो ये ओवरऑल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो बिलो दिस पॉइंट क्या होगा? ओके. बिलो दिस पॉइंट क्या होगा कि यहां पे इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी. यू कैन सी दैट हमने अभी ये पैटर्न एस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. एंड अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो यहां पे इस रीजन में योर Q इंटू ई टर्म विल बी ग्रेटर देन M इंटू जी. अब इफ QE बिकम्स मोर देन M इंटू जी, तो QE ये फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे अगर जो ये पार्टिकल आ गया तो इस पे ये फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा. सो आई कैन राइट नेट फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. अगेन नेट फोर्स आपका ऊपर की तरफ है ना, दैट इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. सो व्हाट वी रियलाइज इज कि इसके जब ऊपर है तब फोर्स आपका इसकी तरफ है, जब इस लाइन के नीचे है तब भी फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ है. तो एक बार अगर जो ये ऑब्जेक्ट को आप इक्विलिब्रियम पे लेके आओ एंड इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो,
ऊपर के डायरेक्शन में तभी ये नीचे आएगा, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तभी ये वापस इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा. सो दिस इक्विलिब्रियम नाउ आई कैन से इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. फाइन, ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर. फाइन, थैंक यू.